Hello friends, I am Dr. Niaz Ahmed and today we are going to study a very important topic with respect to B.Ed curriculum, that is aims and objectives of teaching mathematics. And this we are going to discuss based on NCF 2009. So let's start with the topic. So aims and objectives, first we have to understand what is aim and what do you mean by objectives. And then we will see aims and objectives of teaching mathematics. So let's see what is aim. So aim involves a total program of education encompassing even आउट ऑफ क्लासरूम एक्सपीरियंसेस. तो जो हमारा एम होता है वो हम हमेशा टोटल प्रोग्राम के लिए बनाते हैं और कभी कभी इसमें क्या होता है जो आउट ऑफ क्लासरूम एक्सपीरियंस होता है वो भी इसके अंदर ऐड हो जाता है ना. तो वी कैन से दैट दिस एम इज़ अ ब्रॉडर टर्म which includes total program of education and normally or sometime it encompasses out of classroom experiences. And अब हमको ये एम को अचीव करना है तो द पार्ट ऑफ एम दैट कैन बी अचीव विद इन एन इंस्टीट्यूशन इज कॉल्ड ऑब्जेक्टिव्स. तो एम्स को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और जो पार्ट हम इंस्टीट्यूशन के अंदर अचीव करते हैं उसको ऑब्जेक्टिव बोलते हैं. सो द पार्ट ऑफ एम दैट कैन बी अचीव विद इन एन इंस्टीट्यूशन इज एन ऑब्जेक्टिव. सो वाइल एम्स गिव्स डायरेक्शन टू एजुकेशन, ऑब्जेक्टिव्स आर डायरेक्टेड टुवर्ड द एजुकेशन. तो एम्स नॉर्मली एजुकेशन को डायरेक्शन देता है, दैट इज इन हाउस एंड इन स्कूल एक्टिविटीज़ एंड आउट ऑफ द स्कूल एक्टिविटीज़. और ऑब्जेक्टिव्स है दैट इज डायरेक्टेड टू एम. ऑब्जेक्टिव्स हमको उस एम की तरफ डायरेक्ट करता है, उस एम को अचीव करने में हेल्प करता है. सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस ऑफ एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स. लेट्स सी more specific way to see the difference between aims and objectives. So let's see the difference between aims and objective. So we have already discussed that aims give direction to education system or objectives they are directed towards aim. Aim has a long term goal, objective has short term goals. Aims helps in attainment of a goals and that is beyond the scope of curriculum, and it is attainment within the education system. It is the steps toward the realization of the aim. So aims is broader and general and objectives are specific, precise and observable. Aim is common for all discipline, can be common for all disciplines. Objectives may vary from course to course, specific for each course. So this is the basic difference of aims and objectives of teaching mathematics. So here we are going to see the aims and objectives at two levels, secondary level and higher secondary level of teaching mathematics. So let's see the aims first. The aims of teaching mathematics at secondary level, and that is based on NCF 2009. So let's discuss aims of teaching mathematics at secondary level. So following aims we are going to discuss at this level. The first one is to enable the child to understand and appreciate the part of mathematics that plays in his environment and is in the community. So first child को हमारा एम क्या होगा सेकेंडरी लेवल में मैथ्स पढ़ाने का कि बच्चा समझ सके और अप्रिशिएट कर सके द पार्ट्स ऑफ मैथमेटिक्स दैट इज देयर इन देयर करिकुलम, और जो उनके इमीडिएट इन्वायरमेंट में मैथ्स यूज़ होती है और जो कम्युनिटी में यूज़ होती है, तो उसको बच्चा समझ सके एंड अप्रिशिएट कर सके. सो टू make the child enable or to enable the child to understand and appreciate the part of mathematics that is playing an important role in his environment and at the same time is in the community also. Second aim of teaching mathematics at secondary level is to enable the child to understand the part of mathematics plays in controlling environment for human progress and in building and running social institutions. तो सेकेंड हमारा एम क्या है कि बच्चा जो है देख सके कि मैथ्स कैसे कंट्रोल करते हैं ह्यूमन प्रोग्रेस को, डिफरेंट चीज़ें जो आसपास में डेवलप हो रही है उसमें मैथ्स का क्या रोल है, मैथ्स कैसे इस चीज़ों को कंट्रोल कर रही है. एंड एट द सेम टाइम वो ये भी देखे कि सोशल इंस्टीट्यूशंस है, चाहे वो स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है ना, चाहे वो गवर्नमेंट है, ये सारे सोशल इंस्टीट्यूशंस को रन करने में मैथ्स का क्या रोल है. तो इट एनेबल द चाइल्ड टू अंडरस्टैंड the part of mathematics that is controlling environment for human progress and in building and running the social institution. इसका नेक्स्ट एम आप देखेंगे कि to develop the child develops mathematical skills and attitude to meet the demands of daily life, future mathematical work and the work in related field of knowledge. So इसके बाद हमने देखा कि एम क्या होगा मैथ्स का कि बच्चे के अंदर मैथमेटिकल स्किल डेवलप हो और एटीट्यूड डेवलप हो, जिससे अगर बच्चा 10वीं के बाद या 10th के बाद एजुकेशन उसका किसी वजह से ड्रॉप आउट होता है
तो जो भी डेली लाइफ में डिमांड्स है मैथ्स की, उसके अंदर वो स्किल और एटीट्यूड डेवलप हो जाए, फ्यूचर मैथमेटिकल वर्क जो भी करने वाला उसका बेस तैयार हो जाए, और जो भी अलाइड फील्ड या रिलेटेड फील्ड है जहाँ मैथ्स का यूज़ होने वाला है उसके बारे में वो इक्विप हो जाए। तो बच्चों के अंदर मैथमेटिकल स्किल डेवलप करना, एटीट्यूड डेवलप करना, जिससे वो डेली लाइफ की डिमांड्स को पूरा कर सके और फ्यूचर मैथमेटिकल वर्क जो भी होने वाला है उसके लिए ये बेस का काम करे। Then to develop the students or the people an understanding of their own strength and weakness, to the end of he may be able to make wise educational and vocational choice. So बच्चा के अंदर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना जिससे वो अपने स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को पता कर सके, जिससे वो फ्यूचर में जो उसको एजुकेशनल और वोकेशनल चॉइस करनी है उसमें उसको मदद कर सके कि उसको मैथ्स की फील्ड में जाना है या किसी और की फील्ड में जाना है। उसके अंदर ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। सो दीज आर द एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट सेकेंडरी लेवल। अब ये मैंने बताया कि आपको कि एम को अचीव करने के लिए हमको ऑब्जेक्टिव्स हेल्प करते हैं ना, तो छोटे छोटे पार्ट्स को हम अचीव कर सकते हैं एम के विद द हेल्प ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। So let's see the objectives of teaching mathematics at secondary level. So following are the objectives of teaching mathematics at secondary level. So first, students begin to perceive the structure of mathematics as a discipline. जब स्टूडेंट 10th में आते हैं तो आपने देखा होगा कि सिलेबस बढ़ जाता है ना। नाउ देयर आर 2 बुक्स, नॉर्मली ज्योमेट्री की अलग बुक होगी और अलजेब्रा की अलग बुक होगी। नाउ दे आर गोइंग टू परसीव द स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स एज अ डिसिप्लिन। तो अभी ये इनको डिसिप्लिनरी ब्लेंड मिलता है मैथ्स का। उनको लगता है कि हाँ ये स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स है, इसमें ज्योमेट्री अलग होगी, अलजेब्रा अलग होगी और अर्थमेटिक अलग होगी, है ना। तो दे आर गोइंग टू परसीव द स्ट्रक्चर ऑफ मैथमेटिक्स एट दिस लेवल। तो 10th स्टैंडर्ड में या सेकेंडरी लेवल पे दे आर गोइंग टू परसीव दिस। Then they become familiar with the characteristics of mathematical communication. So they are now well versed with the communication, they are familiar with the communication. So they are now going to carefully define the terms and concepts. They use symbols to represent them, precisely stated propositions they are going to use, and they are going to use proofs and justifying propositions. तो यहाँ पे उनका मैथमेटिकल स्किल से वो फेमिलियर होते हैं, वो कई सारे टर्म्स और कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पे डिफाइन करते हैं और सिंबल का यूज़ करना सीखते हैं, प्रोपोजिशंस को यूज़ करते हैं, स्टेट करते हैं और प्रूफ्स यानी कि थियरम्स वगैरह को प्रूफ करते हैं, जस्टिफाई करते हैं। ओके, सो this is the objective, that they are familiar with the mathematical communication. Then these aspects are developed particularly at the area of geometry. तो बेसिकली उनकी ज्योमेट्री में ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी, प्रोपोजिशंस हो गया है ना, प्रूफ्स हो गया, सिंबल्स हो गया, तो दे आर गोइंग टू यूज दिस इन पर्टिकुलर ज्योमेट्री, है ना, एरिया में। देन स्टूडेंट्स डेवलप देयर फैसिलिटी विद अलजेब्रा। अलजेब्रा का भी यहाँ पे थोड़ा स्कोप बढ़ता है और दे आर गोइंग टू डेवलप देयर फैसिलिटी इन अलजेब्रा ऑल्सो, विच इज़ इम्पॉर्टेंट नॉट ओनली in the application of mathematics but also within mathematics in providing justification and proofs. तो आपने देखा होगा कि ज्योमेट्री के जब हम थ्योरम्स भी सॉल्व करते हैं तो उसमें भी हम अलजेब्रा का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा अलजेब्रा की फैसिलिटी को भी हम डेवलप करते हैं बच्चों के 10th लेवल पे या सेकेंडरी लेवल पे, सॉरी। सो एट दिस स्टेज स्टूडेंट्स इंटीग्रेट the many concepts and skills that they have learned into a problem solving ability, है ना। So they develop basically at this stage the problem solving ability, and for that they integrate various concepts and skills for that. Then mathematical modeling, data analysis, interpretation taught at this stage can consolidate a high level of mathematical literacy. तो अगर देखेंगे तो बच्चा कुछ स्पेशल चीज़ें सेकेंडरी लेवल पे सीखता है, जैसे कि डेटा एनालिसिस, मैथमेटिकल मॉडलिंग, इंटरप्रिटेशन, है ना, आपको ग्राफ मिलेगा, बार डायग्राम मिलेगा जिसको बच्चे इंटरप्रेट करते हैं। सो दैट इज taught at this stage and this develops high level of mental literacy among the child. Then further objectives हम देखेंगे कि individual and group exploration of connections and patterns, visualization and generalization, and making and proving conjectures are important at this stage and can be encouraged through the use of appropriate tools that can include concrete models as in mathematics laboratories and computers. तो एट स्टेज पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको एम अगर अचीव करना है तो हम इंडिविजुअल एंड ग्रुप एक्सप्लोरेशन को इम्पोर्टेंस देंगे। एट दिस स्टेज हमारा ऑब्जेक्टिव होगा जिससे बच्चे कनेक्शंस एंड पैटर्न्स को इस्टेब्लिश कर सके, विजुअलाइजेशन एंड जनरलाइजेशन को डेवलप कर सके, और साथ साथ वो दे कैन मेक एंड प्रूव कंजेक्चर्स आल्सो एट दिस स्टेज, ओके। एंड वी आर गोइंग टू इनकरेज द चाइल्ड थ्रू द यूज ऑफ अप्रोप्रिएट टूल, और इसके लिए बच्चों को हम इनकरेज करेंगे कि अप्रोप्रिएट टूल यूज़ करें, जिसके लिए समटाइम दे यूज़ कॉन्क्रीट मॉडल्स
and they are going to use that in mathematical laboratories and computers with the help of computers. Okay, so basically एम है यहाँ पे मैथमेटिकल लेबॉर्ट्री को इंपॉर्टेंस देने का. हमने साइंस लेबॉर्ट्री है ना, जोग्राफी लेबॉर्ट्रीज देखे, बट मैथमेटिकल लेबॉर्ट्री का भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे इस ऑब्जेक्टिव के थ्रू हाईलाइट किया गया है. देन टू डेवलप कंप्यूटेशनल स्किल्स, बच्चों के अंदर कंप्यूटेशनल स्किल्स को भी डेवलप करना एक मेन ऑब्जेक्टिव्स है. देन टू अंडरस्टैंड द यूज ऑफ मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स, मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स का एप्लीकेशन कैसे करना है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड it is the objective of mathematical to understand the object use of mathematical concepts. Then to develop the power of understanding and making use of mathematical language, तो power of understanding को बढ़ाना and mathematical language को use करना, that is also the main objective of teaching mathematics at secondary level. So this we have seen the objectives of teaching mathematics at secondary level. The second level is higher secondary level. So let's see the aim of teaching mathematics at higher secondary level. तो हायर सेकेंडरी लेवल पे मैथ्स का क्या एम होगा टीचिंग का, वो हम डिस्कस करेंगे, एंड दिस इज ऑल्सो डिस्कस अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2009. सो द एम ऑफ teaching mathematics at secondary higher secondary level is to give the individual an understanding of the ideas and operation in number and in quantity needed in daily life. तो बेसिकली यहाँ पे जो इंडिविजुअल है, जो स्टूडेंट है, उसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है ना, जिससे वो ऑपरेशंस इन नंबर्स कर सके और क्वांटिटी का यूज़ डेली लाइफ में कर सके वो. Then to develop the individual an awareness of mathematical principles and operation will enable the individual to understand and participate in general and social as well as economic life of his community. तो बच्चों के अंदर अवेयरनेस बढ़ाना मैथमेटिकल प्रिंसिपल्स का, ऑपरेशंस का, जिससे बच्चा समझ सके, द चाइल्ड शुड अंडरस्टैंड और साथ साथ पार्टिसिपेट करे इन जनरल सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ हिज कम्युनिटी, है ना, अपनी कम्युनिटी के अंदर जनरल लाइफ, सोशल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ में उसका कंट्रीब्यूशन हो, पार्टिसिपेट कर सके. नाउ नेक्स्ट एम इज टू प्रोवाइड through mathematical ideas, aesthetic and intellectual enjoyment and satisfaction, and to give an opportunity for creative expression. तो आप ये देखेंगे कि this is at high secondary level the child is more explored toward mathematics. तो यहाँ पे थोड़ा in depth mathematics हम लोग incorporate करते हैं. तो हमारा बेसिक एम यही है कि बच्चे इस लेवल पे मैथमेटिकल आइडिया उनको ज़्यादा मिले, दे शुड, है ना, imbibe the aesthetic and intellectual enjoyment and satisfaction with the help of this mathematical ideas or mathematics, and this will give them the opportunities for creative expression. Then to provide the basis of mathematical skill and processes which will be needed for vocational and professional purposes, है ना. तो 12th के बाद कई सारे प्रोफेशन ओपन होते हैं, तो ये जो नॉलेज है मैथमेटिक्स का, है ना, सो दिस शुड प्रोवाइड द बेसिस ऑफ मैथमेटिकल स्किल एंड प्रोसेसेस. तो ये प्रोवाइड करे बेसिस कई सारे वोकेशनल और प्रोफेशनल कोर्सेज जो आगे वो चाह रहा है उसके लिए ये एजुकेशन इसको बेस प्रोवाइड करे. ओके, सो दीज आर द एम्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट हायर सेकेंडरी लेवल. सो व्हाट आर द वेज और ऑब्जेक्टिव्स थ्रू विच वी कैन अचीव these aims. So let's see here the objectives of teaching mathematics at higher secondary level. So to provide students with an appreciation of wide variety of application of mathematics. तो पहला हम बच्चों को अप्रिसिएशन के लिए एम्फेसिस देंगे, जिससे जो अप्रिशिएट कर सके कि कितना ज़्यादा वैरायटी ऑफ एप्लीकेशन मैथ्स का हम देखते हैं. देन इक्विप देम विद द बेसिक टूल्स दैट इनेबल सच एप्लीकेशन, है ना, एंड साथ साथ वो इतना इक्विप हो जाए कि वो भी एप्लीकेशन इसका कर सके. Then the rapid explosion of mathematics as a discipline and its range of application favors an increase in the breadth of coverage. आप देखेंगे कि यहाँ पे कवरेज बढ़ जाता है मैथ्स का, ना, कई कई नए नए टॉपिक्स इंक्लूड हो रहे हैं. दिस इज बिकॉज ऑफ रैपिड एक्सप्लोजन ऑफ मैथमेटिक्स एज अ डिसिप्लिन. तो कई सारे रिसर्चेस हो रहे हैं जिससे मैथमेटिक्स का एरेना बढ़ रहा है, उसकी डिसिप्लिन नॉलेज बढ़ रही है ना. तो जिसके लिए हम देखते हैं कि कई वाइड रेंज ऑफ एप्लीकेशंस हमको दिखता है मैथ्स का, that will favors an increase in the breadth of coverage. Then such increase must be dictated by mathematical consideration of the importance of the topic to be included, है ना. इसकी वजह से मैथमेटिकल एक्सप्लोजन की वजह से कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिसको हम कंसीडर करते हैं कि उसको सेकेंडरी हाई सेकेंडरी लेवल पे इंक्लूड किया जाए, है ना. सो ड्यू टू दैट एक्सप्लोजन देयर मस्ट बी इंक्रीज, है ना. दिस इंक्रीज मस्ट बी डिक्टेटेड बाय मैथमेटिकल कंसिडरेशंस of importance of the topic to be included in at higher secondary level.
those the topic that are more naturally be province of other discipline may be left out of the mathematical curriculum, है ना. तो जो दूसरे disciplines में जो topics है तो उसको मैथ्स में उसका इम्पोर्टेंस अगर नहीं तो उसको लेफ्ट आउट करते हैं, और जो मैथ्स के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है उसको ही हम क्या करते हैं इसमें रखते हैं. सो द ट्रीटमेंट ऑफ टॉपिक्स मस्ट हैव एन ऑब्जेक्टिव. जो भी हम टॉपिक लेते हैं जिसको हम ट्रीट करते हैं मैथ्स में उसका कुछ ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, एंड दैट इज़ द कम्युनिकेशन ऑफ मैथमेटिक्स इनसाइट्स एंड कॉन्सेप्ट्स, है ना. और उसमें मैथमेटिकल इंसाइट्स होना चाहिए, है ना, एंड कॉन्सेप्ट्स को कम्युनिकेट करने की वो होनी चाहिए विच नेचुरली अराउज द इंटरेस्ट एंड क्यूरियोसिटी ऑफ द स्टूडेंट्स. सो विद द हेल्प ऑफ दिस the curiosity and interest should be aroused of the students. Then to understand and use efficiently different mathematical language, इस स्टेज पे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि बच्चे इफिशिएंटली मैथमेटिकल लैंग्वेज को क्या करें, यूज़ कर सकें और समझ सकें. टू गेन स्किल इन ट्रांसलेटिंग मैथमेटिकल डेटा फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर. सो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चे स्किल डेवलप कर सके जिससे ट्रांसलेशन की फ्रॉम वन लैंग्वेज टू अनदर, मैथमेटिकल डेटा को एक लैंग्वेज से दूसरा लैंग्वेज में ट्रांसफ़र कर सके, ट्रांसलेट कर सके. सो फॉर एग्जांपल इफ इट इज़ वर्ड प्रॉब्लम दे कैन ट्रांसलेट दैट इन द नंबर्स, है ना, नंबर्स में उसको कन्वर्ट कर सके, सिम्बॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सके. टू ड्रॉ लॉजिकल कंक्लूजन्स आफ्टर ट्राइंग एंड टेस्टिंग हिज गेसेस. तो अगर कोई गेस है तो उसको लॉजिकल कंक्लूजन के थ्रू वो प्रूव कर सके. एंड टू एक्सटेंड द आइडियाज ऑफ नंबर्स टू इमेजिनरी नंबर्स एंड इरेशनल्स. तो दे कैन यूज the idea or the knowledge of numbers which they have studied in the previous classes, and they can extend that to imaginary numbers and irrationals. Then to understand and appreciate the use of indices. जो उन्होंने indices पहले पढ़ा हुआ है उसके use को appreciate कर सके कि कैसे उसका use we are using that indices in logarithm में कैसे हम use करते हैं. And also to develop skill in using logarithm table in calculations. और साथ साथ इस level पे हमारा basic objective क्या है कि लॉगरिथम टेबल जो है उसको कैलकुलेशंस में कैसे यूज कर सकते हैं वो एम्फसाइज करना. देन टू डेवलप द स्किल इन यूजिंग फंक्शनल रिलेशन एंड वेरिएबल्स इन सॉल्विंग प्रॉब्लम, है ना. तो आपने देखा होगा स्टेज पे बच्चे नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस होता है कैलकुलस, है ना, फंक्शनल इंटीग्रेशन, है ना. तो ये सारे सब्जेक्ट्स होते हैं तो उसका भी हमारा एम है टू डेवलप द स्किल इन यूजिंग फंक्शनल रिलेशन एंड वेरिएबल इन सॉल्विंग प्रॉब्लम. तो उसका यूज करके कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे. देन टू डेवलप द कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी एंड डेवलप फर्दर द कॉन्सेप्ट ऑफ जीरो इन रिलेशन टू इन्फिनिटी. तो कॉन्सेप्ट ऑफ इन्फिनिटी को हाईलाइट करना स्टेज पे और जीरो का रिलेशन इन्फिनिटी के साथ कैसा है वो कॉन्सेप्ट को डेवलप करना इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स एट हायर सेकेंडरी लेवल. देन टू डेवलप सर्टेन अदर कॉन्सेप्ट्स एज लिमिट्स एंड प्रोबेबिलिटी. कई सारे दूसरे भी कॉन्सेप्ट्स है उसको भी डेवलप करना जैसे लिमिट्स एंड प्रोबेबिलिटी. Then to develop skill in using higher geometrical instrument और practical and field work. Basic emphasis है कि कई सारे दूसरे geometrical instruments है जो एडवांस है उसको यूज़ करना, उसकी यूज़ करने की स्किल को डेवलप करना, प्रैक्टिकल स्किल को डेवलप करना एंड फील्ड वर्क स्किल को डेवलप करना. टू गेन रीजनेबल स्पीड, एक्यूरेसी एंड सेल्फ रिलायंस इन कैलकुलेशन एंड ऑल्सो इन यूजिंग मैथमेटिकल सिम्बॉलिज्म. तो अच्छी स्पीड उनकी मैथ्स की डेवलप हो जाए, है ना, हाई सेकेंडरी लेवल पे एक्यूरेसी डेवलप हो, सेल्फ रिलायंस खुद से वो चीज़ कर सके, कैलकुलेशन खुद से कर सके, ऐसे सेल्फ रिलायंस डेवलप हो एंड मैथमेटिकल सिम्बॉलिज्म का भी यूज़ हो अच्छे से कर सकें. ये बेसिक हमारा ऑब्जेक्टिव है हाई सेकेंडरी लेवल पे. एंड टू अप्लाई इंटीग्रेटेड नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स इन सॉल्विंग रियल प्रॉब्लम. ओके, सो सारे, है ना, सब्जेक्ट्स का यानी कि चाहे ज्योमेट्री हो, चाहे वो कैलकुलस हो, चाहे वो अलजेब्रा हो, सबका इंटीग्रेटेड नॉलेज मैथमेटिक्स का हम यूज़ करेंगे सॉल्विंग रियल लाइफ प्रॉब्लम. सो दीज आर द एम्स and objectives of teaching mathematics, and we have discussed that at two levels, secondary level and higher secondary level. So thank you very much for patiently listening and watching. So if you like the video then please press on like button, comment and subscribe the channel for more such kind of videos. Thank you so much.